Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole playlist C++ from basic to advanced. And in day 20 of this playlist, we are going to learn set in STL. Okay, so what are sets and then all of its method functions. Okay, not all क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं. So we will see all important method functions. Okay, and then we will see some example program of set. Okay, so that हमको उसका use और characteristics सब clear हो जाए. Fine. So before starting, let's see what Newton School is. So basically, Newton School is an e-learning platform. They are training you for being a full stack developer. Okay, so they will teach you different programming languages and backend and front end development, different core subjects and everything. Okay, so and then they will get you placed as a full stack developer. They also have a pay after placement program. Okay, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, and they have ThoughtWorks, Topper, Unacademy, Dream11, Deloitte, Misho, Motorola, almost 300 companies. Okay, so they have tie up with almost 300 companies of India, and they will train you for placement and minimum CTC they will provide you is of 5 lakh CTC. Okay, so it is also a good thing. Just come to their website and explore their pay after placement program. Second thing is they have also launched a launchpad initiative these days, under which they are teaching you for free. Okay, so they are providing you different courses for core subjects and for development, for programming, for competitive programming. Only thing you need to do is you have to come to their website, sign up for free and start learning. Okay, so there are different courses by subject experts, and you can also get certificate for completion of course, and you can also do practice in their website. They also have a IDE for you, and they also host competitive programming contests. So complete package in their website. Just come to newtonschool.co and check everything. Fine. Second thing, that if you didn't check this playlist C++ tutorials from basic to advanced, just go to Code Kitchen Newton School and bookmark this playlist. I'm posting one video every day. Firstly, I have taught C++, all basics, and then I'm heading towards competitive programming and STL and data structures. Okay, so posting one video every day. Just subscribe this channel and bookmark this playlist. Now let's start today's video. And what we have today is we have sets. Okay, set in STL C++. Set in STL C++. So first thing we need to know what are sets. Okay, so set is also a template library in STL, standard template libraries. Okay, और इस पे होता क्या है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज में लाते हैं, इज इट कंटेन्स यूनिक sorted elements. ओके, आपको सेट में खाली इतना लर्न करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक, एंड सेट विल बी ऑल क्लियर टू यू. फाइन. यूनिक सॉर्टेड एलिमेंट्स सेट में हो. अब इसका मतलब क्या है? सेट एक कंटेनर है. पहले हम देखते हैं वो एलिमेंट कैसे स्टोर करवाता है. सेट इज सिंपली अ कंटेनर. ओके, एंड होता क्या है इसमें, एसोसिएटिव कंटेनर है. एक सिंगल वैल्यू स्टोर्ड रहती है इस कंटेनर में. ठीक है, एंड दिस कैन बी ऑफ एनी टाइप, integer, character, string, any type. Okay, fine. Now ये ऑर्डर क्या होता है? ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होंगे. ओके, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, ठीक है, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटा. फाइन. So for doing this or this, there is a different syntax. Okay, जो हम यूज करेंगे और हमारा जो सेट है वो अरेंज हो जाएगा. फाइन. Second thing is all the elements are unique. Okay, so it means if first element 1 is in set, then 1 और कहीं पे भी नहीं आएगा. ठीक है, then all these elements will be different and will not be equals to 1. Okay, so all elements are unique and will only occur at once. Fine. Fine. Now let's see, let's before starting set, let's see syntax and then initialization, then characteristics and use, and then everything about set. Okay, so first thing we need to know is syntax.
सो एज वी कैन सी दैट सिंटेक्स बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है। मैंने STL में सब बता चुका है कि सबसे पहले STL का जो भी नाम है वो लिख दो, दो ब्रैकेट के अंदर आप सेट में मैंने बताया खाली एक वैल्यू स्टोर होगी, उसका डेटा टाइप। लेट सपोज आई वांट टू स्टोर इंटीजर टाइप, ठीक है, आई रोट इंटीजर हियर एंड देन आई गिव माय सेट नेम s, फाइन। ये मैंने क्या कर दिया, अपना मुझे किसी भी प्रॉब्लम में सेट यूज करना था, मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि मुझे सेट जिसका नाम s है और मुझे उसमें इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करना है, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, कि तुम्हें सेट में पहले से कुछ वैल्यूज स्टोर करवा के रखनी है ना, कोई ना कोई वैल्यूज। सपोज यू हैव सम एरे इंट AR और उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और तुम्हारे पास वो एरे 2 4 1 3 0, ठीक है, और तुम्हें ये एलिमेंट्स सारे के सारे सेट में पहले से डालने हैं, ठीक है। तो व्हाट यू विल राइट इज, उसका सिंटेक्स बताने जा रहा हूं, s डॉट इंसर्ट, ठीक है, एरे का नाम कॉमा एरे का नाम प्लस साइज दैट इज 5, यू कैन राइट, ओके। सो अब इससे तुम्हें समझ में क्या आया, सेट को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है। इनिशियली सेट इज एम्प्टी, ओके, एंड टू पुट एलिमेंट्स इन सेट व्हाट डू वी यूज इज सम मेथड, ओके। हमें कोई एलिमेंट सेट में डालना है तो ऑब्वियसली वी विल यूज सम मेथड एंड दैट मेथड इज इंसर्ट, ओके। सपोज सेट हमने एक लिया, सेट इन s, ओके। अब हमें 3 इंटीजर अपने सेट में डालना है, तो व्हाट वी विल राइट इज s डॉट इंसर्ट 3 सिंपली, और मेरा 3 सेट के अंदर चला गया, ठीक है। अब मेरा जो सेट था वो ऐसा हो गया कुछ। अब सपोज मैंने s डॉट इंसर्ट लिखा और मैंने डाला 1, ठीक है, तो अब मेरा सेट इससे कैसे चेंज होगा, 1 3। आई टोल्ड यू कि बाय डिफॉल्ट अगर तुम नॉर्मल सेट का सिंटेक्स यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। इफ नाउ आई विल इंसर्ट s डॉट इंसर्ट 3 अगेन, देयर विल बी नो चेंजेस और हमारा सेट यही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक बार मैं 3 डाल चुका हूं तो 3 ऑलरेडी हमारे सेट में है एंड आई टोल्ड यू यूनिक सॉर्टेड वैल्यूज, ठीक है, दैट्स व्हाई 3 विल बी ओनली वन टाइम इन द सेट, फाइन। तो सेट में हमें पता चल गया कि इनिशियलाइज या इंसर्ट कैसे करते हैं इनमें, ठीक है, और कैसे। थर्ड थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, उसी से हमें सारे के सारे यूज क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरी एलिमेंट विल बी यूनिक, ठीक है। एक एलिमेंट एक ही बार सेट में अपीयर करेगा, जैसे 1 है तो वो एक ही बार 1 आएगा, ये नहीं हो सकता कि 1 1 1 1 ऐसा सेट में नहीं होता, ठीक है, एवरी एलिमेंट विल बी यूनिक। Second characteristic is element will be arranged in some order, okay. By default, if we use set default syntax set in s, so by default element will be arranged in ascending sorted order, okay. Now अब दूसरा ऑर्डर क्या होता है हमारा, डिसेंडिंग। तो अगर हमें डिसेंडिंग का सिंटेक्स लिखना है तो व्हाट वी कैन राइट इज सेट डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप है तुम्हारा तुम उसमें लिखो ग्रेटर, ठीक है, GREATER, फिर अंदर एक और ब्रैकेट लगाओ और उसमें जो भी तुम्हारे सेट में स्टोर करवा रहा हो लाइक इंटीजर टाइप, तो ग्रेटर इंट और अपना ब्रैकेट क्लोज और s, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा सेट है, अब तुम इसमें कोई वैल्यू स्टोर करोगे तो वो तुम्हारी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेंगी, ठीक है। तो ये दो सॉर्टेड एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि सॉर्टेड रहेगा। थर्ड थिंग इज यू कैन नॉट मॉडिफाई सेट एलिमेंट, ठीक है, तुम सेट के एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूं ये समझा रहा हूं, ठीक है। इनिशियली लेट सपोज वी हैव 1 3 and 5 in my set, okay, and suppose I want to change 1 to something this 2 3 and 5, I cannot do it directly, ठीक है, मैं डायरेक्टली 1 को 2 नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, जैसा कि हम वेक्टर और मैप में कर लेते थे, है ना, वेक्टर मैप लिस्ट इन सब में कर लेते थे ना।
कि अगर मान लो ए नॉट की वैल्यू मेरी क्या है, इनिशियली 1 है, तो मैं अगर ए नॉट को 2 लिख दूंगा तो मेरा मॉडिफिकेशन हो गया है ना, 1 से 2 हो गई वैल्यू। आई कांट डू दैट इन सेट। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 अपने सेट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज मैं क्या बोल रहा हूं, फाइन, आई एम सेइंग कि वी कैन नॉट मॉडिफाई सेट एलिमेंट, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं अगर मॉडिफाई अपने सेट को करना चाहता हूं, मींस 1 को 2 बनाना चाहता हूं, व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल रिमूव 1 फ्रॉम माय सेट एंड विल सिंपली प्लेस 2। ओके, तो मैं अगर 1 2 और 1 3 और 5 से अगर मैं क्या बनाना चाहता हूँ 2 3 और 5, तो आई विल सिंपली डू, इससे मैं क्या करूंगा, पहले 3 5 बनाऊंगा और फिर 3 5 से 2 3 5 बनाऊंगा, ठीक है, इन दिस वे। तो 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, फाइन। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है सेट की, और इन तीनों से सारा यूज क्लियर हो जाएगा। कैसे, अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप की याद हो गई, फाइन। अब यूज, सपोज तुम्हारे पास कोई एक कंप्लीट एरे है एंड इन कंप्लीट एरे यू वांट टू टेक ओनली यूनिक एलिमेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे आपको डायरेक्ट ऑर्डर ही मिल जाएगा। सपोज तुम किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, और डेटाबेस है, तुम्हारे पास काफी सारी वैल्यूज हैं और काफी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई हैं, मान लो 1 1 1 1 काफी सारी बार आ गया, या फिर यू कैन से हितेश 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 3 4 बार या 1000 टाइम्स आ गया। what we can do is we can put all the database in my set। ओके, मैं सेट में सारा का सारा स्टोर करवा दूं और मुझे सारी की सारी यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। हितेश खाली एक बार आएगा, न्यूटन खाली एक बार आएगा। ओके, सो आई कैन यूज सेट फॉर यूनिक वैल्यूज, ओके, और टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, फाइन। नाउ सेकेंड यूज कैन बी, वी कैन यूज सेट फॉर सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है मेरा, कुछ भी मैं एलिमेंट डालता हूँ और मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। 1 मैंने डाला तो 1 यहीं पे रहेगा, 2 मैंने डाला तो 2 यहीं पे रहेगा, 3 तो 3 2 के बाद आएगा, है ना। तो सॉर्टेड ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, इसलिए भी मैं सेट को यूज कर सकता हूँ, फाइन। नाउ हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स इन सेट, फाइन। तो ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, एलिमेंट्स इन सेट। हम डायरेक्टली इंडेक्सिंग से सेट में एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन सेट वी हैव टू इटरेट, ओके। हमें सेट में पूरा इटरेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा कोई एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है सेट और इसमें वैल्यूज है 1 2 5 7 10, ठीक है। वी हैव टू इटरेट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम बिगिनिंग यू कैन से, ठीक है, एंड वी हैव टू इटरेट टिल एंड फॉर एक्सेसिंग सेट्स वैल्यू, ठीक है। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक सम इटरेटर। इटरेटर मैंने बताया था, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, रेंज बेस्ड फॉर लूप लिखूंगा ऑटो, ये मैंने इटरेटर ले लिया इन सेट। सपोज माय सेट इज एस एंड व्हाट आई विल सिंपली डू इज सी आउट it, now it will simply print 1 2 5 7 and 10, ठीक है, फाइन। अब मेरा ये हो गया। अब आते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेट, जो जो फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं सेट में, ठीक है। तो वो कॉमन से फंक्शन की हमें कोई चीज इंसर्ट कैसे करनी है, अब कोई चीज डिलीट कैसे करनी है, सेट का साइज कैसे पता करना है, ठीक है, सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेट का लास्ट एलिमेंट, ऐसे सारे फंक्शंस, तो वो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ये मेरे सारे कॉमन फंक्शंस हैं, ठीक है, और ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं सब फंक्शन की, ठीक है। सपोज यू हैव सम एसटीएल, बहुत कॉमन सी चीज बोलने जा रहा हूँ, और तुम्हें वो एसटीएल अपने किसी प्रोग्राम में यूज करना है फॉर सपोज सेट, यू विल ओनली यूज इट इफ यू नो कि जो तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स हैं क्वेश्चन के, ठीक है, उस पे तुम अपने सेट के फंक्शंस जो हैं जो तुम यूज करने वाले हो अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर लेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए जब भी तुम अफोर्ड करोगे, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड सम ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी अगर एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। तो इन दिस वे, फाइन। नाउ अब मैं सारे के सारे फंक्शन एक एक करके समझाता हूँ। इंसर्शन, इंसर्ट, मैंने अभी फंक्शन बताया था एस डॉट इंसर्ट, सेट डॉट इंसर्ट। कोई भी एलिमेंट को सेट में पुश करना है अगर तुम्हें कि डालना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ लॉग एन, जहां पे n जो है साइज ऑफ सेट है, ठीक है, फाइन। तो यू कैन से
that if you want to insert n elements in your set, then your overall complexity will be O of n log n. ठीक है, और तुम्हारे के सारे एलिमेंट्स तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगे. ठीक है, फाइन. नाउ एम्प्टी, व्हाट इज एम्प्टी? एम्प्टी, ये जो सारे फंक्शंस है ना, ये एसक्यूएल में तुम्हारे कैसे यूज होंगे? जो भी सेट का नेम है तुम्हारे, सेट नेम डॉट तुम्हारा जो भी फंक्शन है, सपोज एम्प्टी. फाइन. तो ये क्योंकि मेंबर फंक्शंस हैं, अगर आपने ऊप्स पहले से जानते हो तो दैट्स व्हाई वी यूज डॉट ऑपरेटर. ओके, नाउ एम्प्टी हमें क्या बताता है? दैट वेदर अवर सेट contains some element or not. Okay, set अगर empty है then it will return true, otherwise it will return false. Fine. अभी जैसे ये मेरा सेट है और ये empty है, then s dot empty will return true, otherwise false. Okay, now begin. begin मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ STL में कि हर begin का मतलब होता है iterator to its first element. ठीक है, some पोजीशन, कोई तुम्हारा एक वेरिएबल होगा इटरेटर जो कि फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट वैल्यू के एड्रेस के इक्वल होगा. ठीक है, तो इफ यू राइट s डॉट बिगिन, देन दिस विल पॉइंट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट, एंड इफ यू अगेन यूज दिस ऑपरेटर वैल्यू एट s डॉट बिगिन, देन इट विल गिव सिंपली द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. Okay, fine. Simply in end case, last element की value you can access like this, star s dot end. Okay, fine. Find as the name suggests, किसी भी element को set में find करना है. ठीक है, कि मान लो कि तुम्हारा जो set है 1 3 5 10 13 and we want to find some element 13. Okay, so we will simply write s dot find 13. Okay, and it will give me the variable pointing towards 13. Okay, तो मुझे क्या पता चलेगा? एक एड्रेस मिल जाएगा जिसको 13, जो 13 को पॉइंट कर रहा होगा, एंड फ्रॉम दैट सिंपली व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज 13 को रिमूव कर सकता हूँ इसकी वैल्यू से, इसके एड्रेस से. ठीक है, इस तरह. नाउ क्लियर, सेट को पूरा का पूरा खाली करने के लिए सपोज ये सारे एलिमेंट्स हैं एंड आई रोट s डॉट क्लियर, इट विल मेक सेट एम्प्टी. ओके, एंड o ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट्स सब एक एक करके हटाओगे तो o ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी. फाइन फाइन. लास्ट मेथड इज इरेज. दिस क्रिएट सम एम्बिग्यूटी, तो हम सारे मेथड्स को हटा के इसको पढ़ते हैं. सपोज अब मेरा सेट का इरेज अगर मुझे अच्छे से समझना है तो मुझे सेट के इम्प्लीमेंटेशन में जाना पड़ेगा. तो सेट अभी के लिए मैं बता दूं कि जो सेट होता है वो हमारा कुछ ट्री का यूज करके, बाइनरी ट्री का यूज करके इम्प्लीमेंट होता है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री. ओके, तो इफ वी रिमूव ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम सेट, ओके, अगर मान लो कि मैं सेट, सबसे पहले तो एक इसका सिंटेक्स लिखता हूं, s डॉट इरेज पोजीशन. जैसे मैंने फाइंड का यूज किया था और 13 फाइंड किया था, तो आई कैन डायरेक्टली यूज s डॉट इरेज फाइंड, s डॉट फाइंड 13. अब ये मेरा क्या करेगा, 13 को रिमूव कर देगा सिंपली. ओके, तो s डॉट फाइंड की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, log n, और s डॉट इरेज की इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केसेस में o ऑफ 1 होती है. ठीक है, इरेज करने की o ऑफ 1 होती है, या फिर o ऑफ कांस्टेंट, यू कैन से कांस्टेंट टाइम लेता है. ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कोई एक नोड तुमने अपने बाइनरी ट्री से हटाया और फिर उसको बैलेंस करने में दोबारा कांस्टेंट टाइम लगता है. सपोज ये तो तुम्हारा हो गया कोई एक एलिमेंट हटाने का टाइम. ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज इरेज टू रिमूव सम एलिमेंट्स इन द रेंज. लाइक तुमने एक फॉरवर्ड इटरेटर दिया और एक बैकवर्ड इटरेटर दिया. अब तुम्हारा सेट क्या करेगा, फॉरवर्ड से लेके बैकवर्ड -1 तक के सारे एलिमेंट्स इस रेंज में इरेज कर देगा. ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि इसमें आ रहे हैं, इनटू log n. ठीक है, तो इस केस में जो तुम्हारा सेट डॉट इरेज है वो थोड़ा सा अनअफोर्डेबल हो जाएगा, यू कैन से. भाई
यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि अब मैंने क्या किया, अभी मैंने एक एलिमेंट निकाला था अपने बाइनरी ट्री से, तो उसको बैलेंस करने में कुछ कांस्टेंट टाइम लगा, है ना। अब अगर मैं क्या करूं, एक के साथ एक 5 एलिमेंट्स निकाल दूं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा फैल जाएगा और फिर उसको बैलेंस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस, क्योंकि अभी अब मैं ये लेके चल रहा हूँ कि हमको बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं आता, ठीक है। दैट्स व्हाई इन रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम एनी रेंज, सेट डॉट अरेज ज्यादा टाइम लेता है, ओके। एंड फॉर रिमूविंग वन एलिमेंट इट टेक एवरेज टाइम ऑफ वन, ओके fine. So now we know all the functions, method functions of set, and we know almost everything about set. Let's go and do one program, okay. So in previous lecture हमने क्या पढ़ा था, map, okay, and now in this lecture we are going to see set, ठीक है। तो इतना प्रोग्राम मेरा टेम्पलेट है, यू कैन से। मैंने क्या किया, एक एरे ली और एरे में अपना सारे एलिमेंट्स स्टोर करवा लिए, ठीक है। नाउ सपोज मैंने किसकी एरे ली, नेम्स की। मैं इसको इंटीजर से किस में चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑफ एरे, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां से हितेश, हितेश ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं कि स्कूल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मान लो 8 एलिमेंट्स मैंने लिए और मेरे डेटाबेस में 6 एलिमेंट्स में डाल चुका हूं, ठीक है। तो अब बाकी बचे एलिमेंट्स मैंने मान लो डाल दिए त्रिपाठी, ठीक है, और त्रिपाठी, और ये 8 एलिमेंट्स हो गए। अब मैं क्या करूं, अगर एक सेट बनाऊं, ठीक है, और जिसमें ऑब्वियसली मैं डेटा टाइप, अगर मेरा डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग लूंगा, और मैंने उसका नाम दे दिया एस। अब मुझे अगर सारे के सारे एलिमेंट्स अपने एरे के इंसर्ट करने, तो आई विल सिंपली राइट एरे, एरे प्लस साइज, ठीक है। अब सारा मेरा डेटाबेस अपने सेट के अंदर चला गया। नाउ आई विल शो यू आफ्टर प्रिंटिंग ऑटो आई इन, I will iterate and simply print all the elements in my database, and देखना सारी की सारी वैल्यूज यूनिक हो जाएंगी, ओके। देखो यूनिक एंड इन सॉर्टेड वे ओनली, एच सबसे पहले आता है, एन उसके बाद, एस उसके बाद, टी उसके बाद, दैट्स व्हाई ये इस ऑर्डर में, ठीक है। तुम अगर क्या करते हो, त्रिपाठी को सबसे पहले भी रख दोगे, तुमने क्या किया, त्रिपाठी को सबसे पहले भी रख दिया, still they will be in the same order, in the sorted order, fine. तो सेट का यूज, कैरेक्टरिस्टिक मैंने सब बता दिया। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज चेक दीज ऑल फंक्शंस, इन सारे फंक्शंस को सेट में यूज करके देखो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगेन यू कैन विजिट न्यूटन स्कूल Launchpad initiative and pay after placement program, check their offers and everything, explore their website and join if you think इट इज, मतलब वो तुम्हारे फायदे का है, देन ज्वाइन इट एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री और गेट ट्रेन्ड फॉर योर प्लेसमेंट्स, फाइन। एंड सिंपली go to Code Kitchen Newton School, bookmark this playlist C++ tutorials from basic to advanced, and subscribe this channel also. Thank you guys for watching.